Good morning, everyone. Well, today we'll start with our lecture 32 of concrete technology. So, if you guys remember, we were studying about NDT test, that is non-destructive testing of hard concrete, right? So, इनमें से there are two type of tests that we need to study. And for your syllabus, we studied about rebound hammer test in our last lecture. If anybody has missed that lecture, please go and watch that lecture. And now the second test that we are going to study about is ultrasonic pulse velocity method. It's a very easy test and it's very interesting test also. Okay, so please be mindful and please listen to the lecture carefully. Let us see what it says. It is a simple and a quick test to determine the pulse velocity. ठीक है, तो ये test में what are we going to determine? We are going to determine the pulse velocity, ठीक है, by measuring the time of travel of an ultrasonic pulse passing through the concrete. So इस test में basically हम क्या करने वाले हैं? If I show you with a simple diagram, हम कोई भी एक concrete surface लेंगे, ठीक है? This is your concrete surface. तो इस concrete surface में से हम एक ultrasonic pulse velocity pass करेंगे. What are we going to pass? We are going to pass through an ultrasonic pulse. Sorry, एक ultrasonic pulse, एक pulse pass कराएंगे, ठीक है? An electronic ultrasonic pulse we are going to pass. तो ये अल्ट्रासोनिक पल्स को इस कंक्रीट में ट्रैवल करते समय, इस कंक्रीट के अंदर ट्रैवल करते समय कितना उसका वेलोसिटी कितना था वो मेजर हम करेंगे. तो उसी को हम बोलते हैं ultrasonic pulse velocity. Basically what we are doing, we are passing a pulse through this concrete surface and then we want to find the velocity of this pulse, and by determining the velocity of this pulse we can determine the quality of concrete. That's what it's saying, that we determine the pulse velocity by measuring the time of travel of an ultrasonic pulse passing through the concrete. ठीक है, तो वेलोसिटी निकालते समय हमें क्या निकालना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम. ठीक है, लेंथ हमें पता होगा, लेंथ होगा आपका वेव लेंथ. जो भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आप रख रहे हैं, जहाँ आप पल्स को पास यहाँ से कर रहा है और यहाँ रिसीव हो रहा है, तो इतना लेंथ तक आपने अपना पल्स पास किया, तो ये होगा लेंथ जो आपको पता होगा. और टाइम जो है वो हमको कैलकुलेट करना है कि ये पल्स जब पास किया तो कितना टाइम लगा उसको पास करने में. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर. तो हमें लेंथ पता होगा तो टाइम पता होगा, तो अगर लेंथ और टाइम दोनों पता है तो वेलोसिटी निकल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द जनरल आइडिया. हम देखते हैं वो टेस्ट कैसे करेंगे. It consists of an electronic circuit. Okay, first thing obviously एक electronic circuit चाहिए for generating pulses. Obvious की बात है ना, right? Now if we are generating pulse, okay, तो हमें obviously एक electronic circuit चाहिए. ठीक है, दूसरा चीज़ क्या चाहिए हमें? And a transducer. Okay, and a transducer for transforming the electronic pulses into मैकेनिकल एनर्जी. सो मतलब एक और ट्रांसड्यूसर चाहिए जो क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक पल्स को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो आई विल इवन शो यू द सेटअप एंड विल इवन सी योर वीडियो. सो लेट अस सी द प्रोसीजर फर्स्ट. The ultrasonic pulse waves are generated from pulse generator. So first step क्या करेंगे? Let us see. Before that, let me tell you, okay, let me show you everything. This is your concrete. This is your concrete structure. ठीक है, जहाँ पर आपका concrete test होने वाला है. तो इसमें हमने क्या लगाया? एक पल्स जनरेटर लगाया. पल्स जनरेटर वही एक जनरेटर है जहाँ से अपना पल्स जनरेट होगा. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? अब इलेक्ट्रॉनिक पल्स और वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम पल्स जनरेटर. फर्स्ट स्टेप. तो ये पल्स जनरेटर से क्या होगा? पल्सेस आर बीइंग जनरेटेड. ठीक है, पल्सेस जनरेट हो रहा है. अब क्या है? सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं. These waves transmit through transmitter end into the concrete mass and receives at receiver end. So basically ये concrete में हम दो
दो एंड रखते, दो एंड ट्रांसड्यूसर रखते, एक साइड हम ट्रांसमीटर एंड रखेंगे जहाँ पर हम ट्रांसमिट होता है, जहाँ पर वो व्हाट डज इट हैपन, वो इट ट्रांसमीटर एंड, यानी कि इस साइड पर वो ट्रांसमीटर एंड होगा, यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे, और दूसरा साइड पे है ये जो ब्लैक दिख रहा है ये आपका रिसीवर एंड है। तो पल्स जनरेट करेंगे, एक साइड से ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर उसको ट्रांसमिट करेंगे, रिसीव मतलब यहाँ मिलेंगे, और ये यहाँ से पास होके यहाँ तक रिसीव होएंगे, ठीक है। तो एक ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है, एक रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है। तो पल्स जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पास होगा। उसके बाद the digital display shows the time required to pass the waves through concrete mass. ओके तो अब क्या होगा, अब जब आप जब आपका वेव पल्सेस जो है ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक जब पास किया तो कितना टाइम लगा वो आपका इस टाइम डिस्प्ले यूनिट में दिखाएगा, ठीक है। दिस इज अ टाइम डिस्प्ले यूनिट, तो वो आपको टाइम दिखाएंगे। उसके बाद the pulse velocity is then calculated by dividing the path or wavelength by time. Like I just said, velocity का formula क्या है, length upon time, right? तो length आपका यहाँ है, ठीक है। ये लेंथ जो कंक्रीट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट जो भी पार्ट ऑफ कंक्रीट लिया वो आपका लेंथ हो गया, और डिवाइडेड बाय टाइम करना है। टाइम आपको यहाँ दिखाएगा जब वही पल्स वेलोसिटी ये स्पेसिफिक लेंथ को पास करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पास करने के लिए कितना टाइम लगा वो नोट करेंगे, फिर लेंथ अपॉन टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। तो हेंस दैट इज योर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। सी इट्स वेरी इजी। Now, the average pulse velocity of wave propagation is calculated by testing at 2 more location, ठीक है। तो बस एवरेज लेंगे, उसके लिए हम 2-3 जगह में वही सेम टेस्ट करेंगे, तो फिर उनका एवरेज लेंगे, ठीक है। Last point, depending on the pulse velocity, quality of concrete is decided as follows. तो फिर according to pulse velocity हम उसका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली आपको क्या समझना है, आपको ये जानना है कि इन शॉर्ट एक्चुअली हम इवन कंक्रीट का यूनिफॉर्मिटी भी देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 कंक्रीट स्ट्रक्चर लिया मैंने, लेट अस एग्जांपल 2 कंक्रीट स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें एकदम स्मूथ सरफेस था, ठीक है, स्मूथ सरफेस था एकदम, अंदर भी कंक्रीट यूनिफॉर्म था। तो जब ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी पास होगा तो ये स्मूथली पास होगा, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी जो है ये ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा, ऑब्वियस बात है ना। देखो अगर अच्छा रोड है एकदम, मतलब हाईवे जो अच्छे वाले हाईवे होता है उसमें जब गाड़ी चलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका स्पीड ज़्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि वो रोड स्मूथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है स्पीड। Whereas let us say same example, अगर कंक्रीट में गड्ढा है, ठीक है, ऐसा गड्ढा है, तो क्या होता है जब पल्स पास होता है तो एक तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, पास होने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा टाइम ज़्यादा लगेगा, और वेलोसिटी भी कम होके वो पास होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गड्ढा, मतलब नॉट गड्ढा, व्हाट यू कैन से, कंक्रीट यूनिफॉर्म नहीं, उसके बीच बीच में कुछ पैच जैसे कुछ है अंदर प्रॉपरली वो प्रॉपर यूनिफॉर्मली उसका कंपैक्ट नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी जो है मतलब वो ऑब्वियसली लेस होगा, वेलोसिटी विल बी लेस। यू कैन कंपेयर सेम थिंग। अब मानो आप जब विलेज रोड जाते हो तो थोड़ा रफ होता है, तो ऑब्वियसली आपका गाड़ी का वेलोसिटी कम होता है, स्पीड। तो सेम थिंग एग्जांपल यू कैन टेक हियर, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या समझ में आया, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो कॉन्क्रीट सरफेस अच्छा है, मतलब कंक्रीट का क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, और अगर वेलोसिटी कम है तो कंक्रीट क्वालिटी अच्छा नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, नाउ ये ट्रांसमिट करते समय देयर आर मेनी वेज वी कैन ट्रांसमिट दिस वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, ठीक है, जब आपके ट्रांसमीटर एंड इज दिस साइड एंड वेट रिसीविंग एंड, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट चार्ज माय लैपटॉप।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो आपको दिखता है यहाँ पर कि जब ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड ऑपोजिट है, यानी कि जब आप इसको ऐसा रखते हैं एकदम, यू कैन से लाइक यू कैन से लाइक एक दूसरे को ऑपोजिट में रखते हो, ये ऊपर सरफेस, ये दूसरा सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि वेव कैसे पास होगा, एकदम सीधा इस डायरेक्शन, ट्रांसमीटर एंड ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर से पास होगा और रिसीवर एंड में रिसीव होगा। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इसमें क्या रखते हैं, ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर एंड रिसीविंग ट्रांसड्यूसर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में क्या होगा, वेव्स जो है वो ऐसा पास होगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वन इज आपका सरफेस ट्रांसमिशन, इसमें क्या है, ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर और रिसीविंग ट्रांसड्यूसर दोनों ही एक ही सरफेस में है, यानी कि एक ही सेम प्लेन सरफेस में, तो इसमें हम बोलते हैं ये आपका सरफेस ट्रांसमिशन है। लेकिन हम मानते हैं कि सबसे एफिशिएंटली जो है रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देते हैं, जब आप ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर और रिसीविंग ट्रांसड्यूसर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। नाउ लेट अस सी अब हम रिजल्ट को कैसे हम रिजल्ट से हम क्या क्या कंक्लूजन ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर पर्स वेलोसिटी 4575 से ऊपर है, सबसे हाईएस्ट, तो इट इज़ इन एक्सेलेंट कंडीशन। 3660 और 4575 के बीच में तो गुड, 3050 to 3600 तो क्वेश्चनेबल, 2100 to 3050 तो पोर, 0 to 2135 इज़ वेरी पोर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम एक और चीज़ भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे ये वही पल्स वेलोसिटी को अगर हम किलोमीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, ये क्या था, ये मीटर पर सेकेंड में था, उसको अगर किलोमीटर पर सेकेंड में बनाएंगे तो अगर उसका वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर सेकेंड अबव है तो क्वालिटी वेरी गुड, और स्ट्रेंथ माना जाता है 30 to 35 MPa। ठीक है, और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 3.5 to 4 है तो क्वालिटी गुड और स्ट्रेंथ है 25 to 30 MPa। 3 to 3.5 तो मीडियम, 20 to 25 MPa। बिलो 3 तो पोर, 15 to 20 MPa। ठीक है, so this is general classification. So with this I also want to show you a video. Okay. So please watch this video. This is a very good video. Pulse velocity testing method and how it can help engineers in quality control of new construction as well as the inspection of existing concrete structures. Ultrasonic pulse velocity is a common non-destructive test for evaluating integrity and quality of concrete materials and structures. The test has been widely accepted in testing concrete materials. It has also been standardized as the standard test method for pulse velocity through concrete. The test can be used for a variety of applications. Applications for engineers involved in the inspection and evaluation include assessing the quality variation of concrete, assessing the thickness variation, measurement of surface crack depth, and establishing the homogeneity of concrete. Most commercial UPV devices include a device for data acquisition, display, and interpretation, as well as a pair of transducers. The test is completed in just a few steps. A transmitting transducer sends a wave inside concrete, and the receiving transducer at distance L. So you can see here, this is your transmitting transducer, this is your receiving transducer. ठीक है, और ये length pass होता है, so this is the wavelength. So you can see here, electronic pulse are generated, and that pulse travels from this transmitting transducer to here. Receives the pulse through the concrete at another point. The transit time of ultrasonic pulse is then measured by the apparatus. By knowing the distance L,
and the transit time t, one will be able to measure the pulse velocity in the concrete using the equation V equals L over T. So in summary, the basic idea behind the pulse velocity method is that the velocity of a pulse depends on the quality of the concrete. In general, the higher the velocity, the higher the quality of concrete. Conversely, a low velocity often yields low quality concrete with the presence of anomalies and deficiencies. So as you can see, by using this test, you can use the velocity calculated in order to assess the quality of motion, mainly because the maximum energy of pulse is transmitted and received. However, this configuration is mainly used to test lab samples or concrete cores and cannot be used in the field for elements with one side access only. If two sides of the element is accessible, then a semi-direct transmission configuration can be used. This configuration can also be used to test lab samples and concrete cores. When the concrete surface you are testing has one side access only, then an indirect or surface configuration can be used. This means that both transmitting and receiving transducers are placed on one side of the element. This is the least desired configuration and is also known to be prone to errors. Certain parameters can affect the UPV test results, including aggregate size, the quality of test surface and transducer contacts, cement type, concrete age, and presence of reinforcement. Special care should be taken in order to minimize these impacts on test results. To learn more about F'(C) and the non-destructive testing solution. Okay, so this is all for today's video. From here you can see that ultrasonic pulse velocity कैसे use होता है, ठीक है. So that's all for today. This test is very important, ठीक है. Either ये और rebound hammer test तो पूछा जाते ही जाते इन दोनों में से, so आप दोनों अच्छे से पढ़ लेना. And with this even our chapter 4 is completed. Thank you.